Good morning, students. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. हम ना 5 मिनट में शुरू करेंगे. मैंने अभी जस्ट टीवाई का क्लास खत्म किया. यस, चलेगा 5 मिनट. Yes, ma'am. ठीक है, 5 मिनट्स में शुरू करते हैं. मीनवाइल आप अपने अनऑफिशियल ग्रुप में मैसेज छोड़ो. 5 मिनट में लेक्चर में आ जाओ. शुरू हो गया है, सब बोल दो. ठीक है. मुश्किल से 8 बच्चे हैं क्लास में. सुबह को कितने थे नंदिनी मैम के लेक्चर में? अमित, मैम वही 8-12. sums for your homework. Let me know if you have any doubts. Otherwise, we will start with this budgeting. Now, what do you mean by budgeting? Budgeting is nothing but the estimation of future incomes and expenses. For example, आपने प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर जो फाइनेंस बजट निकालते हैं. So, what do you mean by the finance budget? Finance budget means that the minister is going to estimate. He is going to estimate the future incomes and expenses, so that suppose the future incomes are going to be 3 crores. So he will be able to understand all these 3 crores I will invest in what different areas, in which different areas. Are you getting my point? Suppose government want to build roads, bridges, flyover, and make different infrastructural, construction in different areas and cities. Therefore, government need funds for all of these activities. And where the government collect the funds from? Public, through taxes, fees, penalties, etc. Therefore, finance budget is known as out of the given income. I mean, out of the collected income from taxes, penalties, and fees, government gets income. So, out of that collected income, how much is going to be spent and where the amount will be spent? That is known as financial budget, finance budget. Similarly, in companies, now you have understood the example of government making finance budget. Now come to company who is making who is thinking about the company's activities, firm's activities. The affairs of the firms like purchase, sales, and then income, expenses, how much to be spent in particular area or raw material or purchasing, how many machines are to be purchased, how many laborers are to be appointed for a certain period of time or for a particular job. So everything company has to think, and then the budget has to be made. How many employees should be there, how much salaries will be given to them, at what post each employee will receive what amount of salary. So these are different things that company has to think over, and then the budget has to be made. Only then you will come to know what is the expense of the total company, what are the expenses of the company, and then what are the incomes. So after making a budget, we will come to know, we can compare our actual situation. So this is, suppose my budget is of income of rupees 3 lakhs and expenses of rupees 2 lakhs, leftover profit in my hand is 1 lakh. So this is my budget. Budget means estimation. It is an approximation of incomes and expenses to be earned in future. But it is not necessary that I earn incomes of rupees 3 lakhs only. I may earn less than that, I may earn more than that. Do you agree with the statement? Yes, do you all agree with me? Yes, ma'am. Yes. So company may earn less than that, company may earn more than that. So based on the actual performance, the targeted desired results will vary. Vary means change. The targeted or desired results will change. You thought of earning a profit of rupees 1 lakh, but
That may or may not happen. No, you may earn more than 1 lakh ka profit, you may earn less than that also. So it can be, the situation can be anything, but before that you have to make budget. Now you will ask me, ma'am, why do we need to make budget when the things will not be same? You know, planned things will not come out in the same manner. So why do we need budget? Why do we need to make the budget? So the reason is, suppose if you are manufacturing a product which is already there in the market at rupees 10 per unit. Okay. Now, if you are not doing any research, if you are not making any budget, and if you are randomly making product, producing the products, what will happen? Cost may increase. If you have not made the budget of a particular production activity, suppose I'm looking at only production activity. So if you're not making budget of that particular production activity, the cost may increase. If the cost increases to, suppose, 13 rupees, now you will sell the product for at least 13 and a half or 14 and a half or 15 rupees, so that you can earn minimum amount of profit on that particular product. Yes or no? Yes or no, students? Yes, ma'am. Yes. So budget is that important. You see, it will help you understand your selling price, your quotation price, fixing the selling price, achieving the targeted profits, keeping your cost at a controlled level. You know, because your cost is increasing now. You are randomly making. You have not done any research. You are not making any budget कि कितना खर्चा होना चाहिए. You are not doing that earlier. तो बाद में तकलीफ आएगा ना. बाद में आपको लगेगा प्रोडक्ट बनाते जाओ कितना खर्चा हो रहा है बाद में देखेंगे. अब 10 रुपए का प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है, आप 15 में बेचोगे तो कैसे बिकेगा? You have to make that product below 10 rupees. No, but your cost itself is gone crossed to 13 lakhs. Oh, sorry, 13 rupees. Therefore, the selling price will definitely go up and go up from 13 rupees. तो आपका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा बोलो? Very less number, very less number of people in the market. Very less. जिनको आइडिया ही नहीं हो कि ये प्रोडक्ट 10 रुपए में भी मिल रहे हैं, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं. ठीक है? So that time the budget is important. Okay. So basically it means to estimate the future incomes and expenses. What are the main objectives of making budget? To coordinate all the activities and activities done by various departments. Now see, there is a link between purchase department and production department and sales department. So all of them have to coordinate with each other before making and purchasing and selling the product. So suppose if order has been received for 10,000 units. So purchase department will have to order करके production department में डालते, production department वाले sales को बताते कि इतना आपको बेच के आने का marketing करके. So each and every department is, is coordinating with each other. Only then this budgetary control will work and the objectives will be achieved. Am I clear? So this is the main, the main objective of budgetary control, to coordinate all the activities of various departments and to achieve the detailed plan of the firm. प्लान जो बना के रखा है और डिफिनाइट पीरियड में. डिफिनाइट पीरियड मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है. सो फॉर एग्जांपल 2 मंथ्स में ये प्रोडक्शन खत्म करने का, दिवाली सीजन आने वाला, तो दिवाली के बाद क्रैकर्स बेचोगे क्या? बिकेंगे उतने बेच पाएंगे जितना दिवाली में सेल होगा उसका नहीं. क्लियर? So within that definite period of time, you have to complete your production activity and achieve that detailed plan. Only then the desired results will be achieved. Okay. इसके कुछ steps भी हैं. पहला step है, देखो, establishments of the budget. मतलब आप पहले budget बना लोगे, sales का कितना, cash का कितना, production कितना लगेगा, etc. Sorry. नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. अब बजट बनाया, उसको कंपेयर करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कि मुझे तो प्रोडक्शन मिलनी चाहिए थी 10,000 यूनिट्स की, पर मिली कितनी? 9,000 यूनिट्स. मतलब 1,000
का वेस्टेज हो गया, ठीक है। मेजर करोगे अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद अपना कंपेयर करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट के साथ कंपेयर करके डेविएशंस निकालेंगे। डेविएशंस का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब समझो बहुत बड़ा डिफरेंस आया तो लॉस हो जाएगा ना, इसीलिए वो स्टेप पे कम कर दो जहां लॉस ना हो। और लास्ट स्टेप होता है एनालिसिस ऑफ कॉजेस ऑफ वेरिएशन एंड रिपोर्टिंग, मतलब आप पहचानो कि कॉज क्या था, मतलब क्यों ये प्रोडक्शन कम हो गई, वेस्टेज क्यों हो गया, क्योंकि लेबरर्स ने ब्रेक का टाइम ज्यादा ले लिया, क्योंकि लेबरर्स ने ध्यान नहीं दिया कि मशीन को इस टाइम पे ये मोमेंट पे ये बटन बंद करने का। कॉज क्या है, वेस्टेज क्यों हुई, वो कॉज को एनालाइज करना और रिपोर्ट करना। रिपोर्ट किसको, मैनेजमेंट को, कि आपकी कंपनी में आपके लेबरर्स है ना वो सुनते नहीं है और ध्यान नहीं देते हैं और ब्रेक टाइम ज्यादा ले लेते हैं और ये जो भी आपको लगता है वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन करो, तो मैनेजमेंट करेक्टिव एक्शंस लेती है फिर वो डेविएशंस को कम करने के लिए। कुछ बेनिफिट्स और एडवांटेजेस में है, जैसे कॉस्ट बचती है, गोल सेटिंग और प्लानिंग के हिसाब से हम काम करते हैं, कंट्रोल रहता है अपने बिजनेस के ऊपर, कोऑर्डिनेटेड रहते हैं सब डिपार्टमेंट्स आपस में, इमेज बिल्ड होती है, अच्छी इमेज बनती है अगर आप बजट को बनाकर उसके टारगेट रिजल्ट्स को अचीव करते हो। ऑर्गेनाइजिंग मतलब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रॉपर और क्या बोलते हैं प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से जब आप काम करते हो और टाइमली काम फिनिश करते हो तो अपने डिजायर्ड गोल्स को आप अचीव करते हो। तो दीज आर बेनिफिट्स, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपको मदद करता है बजटरी कंट्रोल। चलो अभी हम आते हैं टाइप्स ऑफ बजट पे। देखो कितने टाइप्स ऑफ बजट होते हैं। ऑपरेशनल एंड फंक्शनल बजट में सेल्स बजट होता है, प्रोडक्शन बजट होता है, ठीक है। प्रोडक्शन में भी टाइप्स होते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। पर्सनल बजट, पर्सनल मतलब एचआर, ह्यूमन रिसोर्स वाला बजट, ठीक है। परचेसिंग बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बजट, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बजट। हर एक एरिया का डिफरेंट डिफरेंट बजट बनाया जाता है, इसे कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। एक होता है प्रोडक्शन बजट, मतलब कितनी प्रोडक्शन करनी है उसका बजट, कितना रॉ मटेरियल, कितने मशीन्स लगेंगे, मशीन पावर फ्यूल कितना खाएगा, एक्सेट्रा। सेल्स बजट मतलब बेचने के लिए कमीशन कितना लगता है, खर्चा कितना होता है, सेलिंग प्राइस कितनी होती है, तो उससे हमको प्रॉफिट पता लगता है। नेक्स्ट होता है फिनेंशियल बजट्स, जिसमें इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश बजट, है ना, ये सब बनाए जाते हैं फिनेंशियल बजट। नेक्स्ट होता है कैश बजट, जो हम पूरा चैप्टर कर चुके हैं, इफ यू रिमेम्बर चैप्टर नंबर 3 ना, आई थिंक, कैश बजट। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. है ना। एक होता है मास्टर बजट, मास्टर में सब एवरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस विल बी डिस्क्लोज्ड हियर, एवरी एक्टिविटी, एवरी प्रोग्राम, हर डिपार्टमेंट का हर एक एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व होता है, मास्टर बजट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट होता है सेल्स बजट। सेल्स ऊपर हमने डिस्कस किया, सेल्स बजट में मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट्स कैसे कर रहे हो, सेलिंग प्राइस कितनी सेट कर रहे हो, प्रॉफिट मार्जिन कितना रख रहे हो, क्या वो अचीव होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये सब आप सेल्स बजट में डिस्क्लोज करते हो। देखो ये फॉर्मेट होता है सेल्स बजट का। प्रोडक्शन बजट का ये आपको पता है, प्रोडक्शन में सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करते हो तो आपको प्रोडक्शन मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो जिसके हम सम्स करने वाले हैं वो है फ्लेक्सिबल बजट। कौन सा बजट है? फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल बजट। का मतलब होता है, हाँ, फ्लेक्सिबल मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट इज इलास्टिक इन नेचर, मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन ब्रिंग चेंजेस इन द बजट। सीजनल बजट जिसको बोलते हैं, मतलब जैसी सर्कमस्टेंस होगा, जैसा सिचुएशन होगा, कंपनी वैसा उसमें चेंजेस लेकर आएगी, ठीक है। सीजनल बजट, कभी सेल्स कम भी हो गई, कभी ज्यादा भी हो गई, कभी आउटपुट फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी टर्नओवर फ्लक्चुएट हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपका जो कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न है ना वो चेंज होता रहेगा। देयरफॉर आपको एक बजट जो इजी होती है बनाने टाइम, उस टाइम पे बनाने के लिए, दैट इज नोन एज फ्लेक्सिबल बजट। क्या बोलते हैं उसको? फ्लेक्सिबल बजट। फंक्शनल बजट मतलब ईच फंक्शन के हिसाब से, जैसे मार्केटिंग फंक्शन है ना, प्रोडक्शन फंक्शन, एक एक प्रॉपर जो फंक्शन, जो एक्टिविटी चल रही है उस हिसाब से आप बजट बनाते हो, उसको बोलते हैं फंक्शनल बजट। नेक्स्ट होता है फिक्स्ड बजट, ये हम टाइप्स कर रहे हैं ना,
फिक्स्ड बजट, फिक्स्ड मतलब जो कभी चेंज नहीं होगा, जो सेम रहेगा हमेशा। एक होता है फ्लेक्सिबल, एक होता है फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब स्टैटिक, लिखा भी हुआ है देखो, एक ही एक्टिविटी, उसका एक ही सब कुछ सेम रहता है और वो चेंज कभी नहीं होता। फिक्स्ड बजट, ठीक है, ये बहुत कम बनाया जाता है। ये मेजरमेंट टूल है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि फर्म का सेल्स और आउटपुट कितने लेवल तक फिक्स्ड है, उसके बाद कब से वो चेंज हो रहा है। कितने लेवल तक फिक्स्ड है मतलब मिनिमम सेल्स तो इतनी होती है, इससे कम कभी सेल्स नहीं हुई है। तो वो एक पॉइंट, फिक्स्ड बजट से आपको वो सेल्स का वो पॉइंट पता चल जाता है कि इतना मेरा कंपनी का मिनिमम सेल्स है। आफ्टर दैट इट चेंजेस, कभी सपोज 9,000 इज माय फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सेल्स, ठीक है, तो उसके बाद कभी 10,000 भी होता है, कभी 11 भी होता है, कभी 12 भी होता है, तो दैट इज फ्लेक्सिबल। But fixed is how much? 9,000. So how will you be able to come to know? How will you be able to calculate that? Through fixed budget. Okay. Clear? Next is capital budgeting, जो हमने financial management के सेम 3 के financial management में किया था। Capital budgeting. Remember? NPV method, payback period method. Yes, ma'am. है ना, वो कैपिटल बजटिंग था, जिससे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं कंपनी में, कि अगर कंपनी में मुझे कोई मशीन सेटअप करनी है या फैक्ट्री का रेनोवेशन करना है, ऑफिस सेटअप करना है, तो कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए वी कैन चूज द बेस्ट ऑफ द number of the options or alternatives available with us. Okay, so capital budgeting helps us to choose and helps us to make decisions for capital investments. जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं ना, वैसे डिसीजंस लेने में कैपिटल बजटिंग हेल्प्स अस। ये हमने प्रैक्टिकली इसके सम्स भी किए, ठीक है। Let me come down and let's see if there are any other points to be discussed. एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, ये भी एक बजटिंग का टाइप होता है। इट इज वन ऑफ द अप्रोच ऑफ द बजटिंग व्हिच रिलाइज ऑन द कॉस्ट ड्राइवर्स, मतलब कि and it's closely related to the activity based costing. मतलब फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है, ठीक है, उसका कॉस्ट कितना, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग में इफ यू आर यू नो अपॉइंटिंग अ सेल्स एजेंट या एडवर्टाइजमेंट करने का जो एक्सपर्ट्स हैं, तो दैट्स अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है, तो उस एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में कितना खर्चा हो रहा है, सो दैट इज नोन एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब आप कोई न्यू फ्यूचर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसमें आपने एक रिसर्च किया कि अगर ये न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे तो मार्केट में कितना चलेगा, है ना, या फिर कितने की सेलिंग प्राइस पे चलेगा, ओके, क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, ऑलरेडी ये प्रोडक्ट्स मार्केट में जो बिक रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है और सेलिंग प्राइसेस क्या है। तो रिसर्च कॉस्ट, जो आप रिसर्च करने के टाइम पे जो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, that can be called as activity based cost. So activity based cost is approach to which you can rely on cost drivers, मतलब एक particular activity से कितना cost generate हुआ, okay. So जो अभी हमने डिस्कस किए वो थे आपके टाइप्स ऑफ बजटिंग, ये उसी के ही अंडर में दिया हुआ है। लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन। हाँ, अभी ये देखो, इसमें ना हम लोग जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, वो होगा आपका, स्क्रॉल डाउन करके नीचे फ्लेक्सिबल बजट पे आती हूँ मैं। Give me 1 minute. Educated people are expected. 1 minute, 1 minute, 1 minute. कहाँ गया फ्लेक्सिबल बजट?
हाँ मिल गया. ओके सी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फ्लेक्सिबल बजट की. देखो यहाँ से शुरू हो रहा है आपका फ्लेक्सिबल बजट. हाँ पेज नंबर तो याद रखो फिर नेक्स्ट टाइम हमको बहुत ढूंढना पड़ता है. पेज नंबर कौन सा है ये किसी को पता लग रहा है क्या? 83 यहाँ पे लिखा होगा ना 83. ठीक है याद रखिए. ओके पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक प्रॉब्लम करवाती हूँ. अभी वैसे ही आप 12 बजे भी आइए. अभी है ना मैंने आज नहीं का जब मैम लेक्चर आती है रहती है ना कभी पूछने का नहीं जवाब देने सो मैं पास करती हूँ. मैडम आजकल किधर गायब है पता नहीं बिजनेस बहुत बढ़ गया मैम आपके लिए नोटिस आई है. आप तड़के पे आए आपके लिए मैम पढ़े. मैंने बोला मैम पर never had basic education schooling नहीं था मुझे मेरे घर में स्कूल प्रिया एक बार पढ़ मैंने मुझे पास में दीजिए ना मैंने अभी सॉरी 12 मेरे बजे घर बोला। में स्कूलिंग था मैं पढ़ी भी तो नहीं माला को पढ़ना है माला का 4th मार्च तक है मैम. फिर मीटिंग भी है आपने क्या बोला प्रिंसिपल और मुझे डायरेक्टर के चाहिए साथ. ले लो हाँ 4th मार्च तक करके फिर मीटिंग भी है. 4th मार्च को मीटिंग है मैम 4th मार्च है नॉट देयर 4th मार्च तक अपने को ये इम्प्लीमेंट करने का जो बनाने को लिए बोल रहा है. और फिर उसके बाद मीटिंग रखेंगे. दे विल अनाउंस ईच डिपार्टमेंट के साथ ऐसा बोल रहे हैं. एक्चुअली दे शुड कॉल अस एंड टीच अस दैट इज व्हाट मैम मुझे लग रहा है देखो हम पढ़ लो ऊपर ऊपर से आप बोलो हां ऐसा आइडिया वो वैसे भी खुद ही बोलने नहीं अब तो ठीक है पर दे विल हैव एन आइडिया ना कैसे वो देखो मैम बोलेंगे वही हमें 4 1 शब्द minute, हाँ. जोड़ना है सी स्टूडेंट्स अभी इसमें जो बजट का है ना फ्लेक्सिबल बजट में am I audible everyone? Yes, ma'am. ओके तो ये देखो अभी एक सिंपल क्वेश्चन कराती हूँ बिगिनिंग में. सो कैलकुलेट द बजटेड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट सॉरी कॉस्ट पर टन at production level of 35 tons based following details at 80% capacity. So इनकी जो प्रोडक्शन लेवल है ना दैट इज 35 टन्स. लेकिन ये 80% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं करंटली एंड दे आर प्रोड्यूसिंग 40 टन्स. Just a minute.
Yes. So 80% capacity, 40 tons are produced. So this is current capacity. Okay. Now what have they asked? They have given details in thousands. Depreciation is 22. Indirect labor, insurance, power, repairs, salaries, and store consumable. So out of this, power is 80% variable. Repairs and maintenance is fixed, 50% fixed. और इसका जो फॉर्मेट है वो कैसे बनाते हैं देखो, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, इसमें सेमी वेरिएबल हम नहीं लिखेंगे, या तो वेरिएबल या तो फिक्स्ड. सो सपोज वो बोलता है यहाँ पे पावर इज 80% वेरिएबल, तो हम इसको 80% कहाँ दिखाएंगे, वेरिएबल, और 20% कहाँ दिखाएंगे, फिक्स्ड. सो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड, आंसर विल बी कॉस्ट पर टन. ठीक है, कॉस्ट मिलेगा, उसमें प्रॉफिट आएगी, यू विल गेट सेलिंग प्राइस. वेट आई विल शो यू. ओके, सो फॉर्मेट कैसा है इसका, वेरिएबल, आप कॉलम्स बना लेंगे, जितने चाहिए होंगे उतने बनाएंगे. जैसे यहाँ पे उन्होंने पूछा है 35 टन्स का बनाना है, 40 टन्स का, और एक 100 कैपेसिटी का. नहीं पूछा है पर इन्होंने हुआ है 100%. ठीक है, अभी इन शॉर्ट पे 2 टन्स दिए हुए हैं, 35 टन्स का बनाना है, 40 टन्स. So it's simple to calculate what percentage of activity it belongs to. So 30 tons पे 80% capacity है. So 35 tons पे कितना percent capacity? So when you cross multiply, you will come 20%. 40 tons पे it is 80% capacity. So how much will be for 35 tons? So your answer will be 70. So when you cross multiply, you will come to know the percentage of the capacity. So basically उन्होंने 2 पूछा है, 100 जो आप सॉल्यूशन में देख रहे हो वो उन्होंने अपनी मर्जी से कैलकुलेट किया है, वो नहीं भी करेंगे तो चलेगा, because that's not asked in the question. ठीक है, ओके. सो अभी जैसे उन्होंने 2 एक्टिविटीज के बारे में पूछा, तो आपको 2 अमाउंट के कॉलम्स बनाने हैं, one for 70% and the other one for 80%, which is already given in the question. ओके, सो फॉर्मेट कैसे होगा, वेरिएबल कॉस्ट, उसमें ऐड करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट, उसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, एंड देन यू विल गेट सेल्स. यस, इज इट क्लियर? इतना ही फॉर्मेट है इसका. Okay, ma'am. Ma'am, while starting the sum, what we have to write this format of flexible budget? नहीं, फॉर्मेट तो मैंने बनाया है, इसीलिए फॉर्मेट लिखा है ना बच्चा. आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द पीरियड, सपोज बोलता है मार्च 2030, तो आप ऐसे लिखोगे. सो दैट इज स्टेटमेंट ऑफ, सूरज जी दरवाजा बंद कर दो ना, बहुत शोर है. थैंक यू. स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट. क्या लिखेंगे? Okay, ma'am. Statement of flexible budget. वेरी गुड. अभी देखो कैसे करते हैं. हाँ? अभी इसमें मेरे फॉर्मेट मैं दूसरे यहाँ पे बना के बनाती हूँ. दिस इज सम नंबर, कौन से सम नंबर है, 32, पेज नंबर 83 ना, हाँ नहीं 87. ठीक है, कॉलम्स कैसे बनाएंगे, फर्स्ट पर्टिकुलर्स, अच्छा उसके ऊपर क्या लिखोगे, स्टेटमेंट ऑफ sorry the spelling is wrong, statement of flexible budget. ठीक है, और पीरियड कुछ बोला नहीं है तो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट. ठीक है, ओके. नाउ क्या बोला उसने, एक 80%, एक 70%. आपको मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना के दिखाती हूँ.
कि 70% कैसे आएगा। ये देखो, इतना तो समझ रहा है कि उसने 80% पे 40 टन बना रहा है, इतना सबको समझ में आ रहा है। Yes, ma'am. So 80% is equal to 40 tons. Therefore, टन्स पता नहीं, परसेंटेज पता नहीं, लेकिन टन्स पता है 35 टन्स। तो 40 टन्स पे 80% है तो 35 पे कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट टू नो द परसेंटेज इन कैपेसिटी इन परसेंटेज। बताइए। 70%. 70%। तो यहाँ पे आपको कॉलम्स भी वैसे ही बनाने हैं। एक होगा आपका 80% का, कैपेसिटी, और यहाँ पे आप बनाएंगे 70% कैपेसिटी, और एक एक का आपको पर यूनिट अमाउंट दोनों बनाना पड़ेगा। सो दिस इज पर यूनिट सब कॉलम and this is amount sub column. Again same per unit and amount. So I will merge this and center में आ जाएगा वो। तो 70% के नीचे भी आपको दिखेगा और 80% के नीचे भी आपको per unit और amount दिखेगा। Is that clear? Yes, ma'am. चलो अभी हम फॉर्मेट के हिसाब से करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट, ये हेडिंग दे दी आपने, नीचे आ जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट के। अब डेप्रिसिएशन कुछ ना बोले मतलब वेरिएबल, ध्यान से देखो। हाँ, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। Just a minute, just a minute. Okay, see depreciation. अभी उसने कुछ नहीं बोला तो हाँ मेरा हो रहा था, मुझे लगा अश्विनी मैडम है। मैम को भी बताइए। हाँ, फिर मैंने किया था अपने पर्सनल आईडी। अच्छा वो मैं आपको कल बोली थी ना, अश्विनी मैडम से हो रहे हैं इन द मीटिंग एंड अदर मीटिंग्स, वो प्रिया थी। अच्छा किया। ओके ओके, सी अभी किसी कोई एक्सपेंसेस के लिए वो बताएगा तो कोई एक्सपेंसेस के लिए वो नहीं भी बताएगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल सैलरीज ऑलवेज फिक्स्ड, आपका आउटपुट बढ़े या कम हो आपकी सैलरी तो फिक्स्ड होगी ना, आप अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज फिक्स्ड दोगे, ठीक है। इंश्योरेंस फिक्स्ड, डेप्रिसिएशन देखो, डेप्रिसिएशन रेट जो होता है 10%, 5%, 20%, दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर इज ऑलवेज फिक्स्ड। If I say direct labor, then it is fluctuating because it depends upon the production activity. So suppose if you are increasing production activity, you are also working for 2 more hours and giving extra production to the company. तो आपको उतना extra payment भी मिलेगा. That is direct labor. Indirect labor जैसे supervisors हो गए या फिर management employees हो गए, ठीक है, तो उनको indirect labor बोलते हैं, जो directly मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इन्वॉल्व नहीं होते, प्रोडक्शन एक्टिविटी से इन्वॉल्व नहीं होते, इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जैसे सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, यू नो, एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑफिस, ठीक है, इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर्स। ये इनको जो पेमेंट्स होती है ना वो फिक्स्ड होती है। तो सबसे पहला है डेप्रिसिएशन, वो फिक्स्ड में जाएगा, कुछ नहीं बोला है तो। इनडायरेक्ट लेबर इज ऑल्सो फिक्स्ड। इंश्योरेंस फिक्स्ड, क्योंकि आप देखो इंश्योरेंस कभी भी आप कोई भी इंश्योरेंस ले लो, जैसे ये क्या है, प्रोडक्शन लेवल की बात कर रहा है, मतलब इनकी फैक्ट्री होगी तो फैक्ट्री के गुड्स का इंश्योरेंस होता है, फैक्ट्री के लैंड का इंश्योरेंस होता है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस होता है। तो आप जब प्रीमियम भरते हो तो वो फिक्स्ड भरते हो ना, है ना, जो खर्चा आता है इंश्योरेंस का वो एवरी मंथ एवरी ईयर फिक्स्ड होता है ना। नेक्स्ट पावर, उसने खुद बताया 80% वेरिएबल, 20% फिक्स्ड। तो 80% कहाँ जाएगा बोलो? Variable. वेरी गुड। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस खुद बताया है उसने, 50% फिक्स्ड, 50% वेरिएबल। अब अच्छा, पावर और रिपेयर्स के लिए अगर वो कुछ नहीं बोलता तो Variable.
वेरी गुड, बिकॉज पावर पावर मतलब अभी जैसे मशीन मशीन का, अगर मशीन जितना ज्यादा चलाओगे तो पावर उतना ज्यादा लगेगा, ठीक है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, अब जितनी ज्यादा मशीन यूज करोगे उतना ज्यादा उसका रिपेयर्स एंड, आपको हर साल उसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करवाते रहना पड़ेगा। तो इट इज वेरिएबल इन नेचर, जितना ज्यादा उसका यूसेज उतना ज्यादा उसका मेंटेनेंस, और पावर भी उतना ही लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए जाता है, बट अभी खुद उसने डिस्क्लोज इतना वेरिएबल है और इतना फिक्स्ड है, तो आपको जो बोला है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सैलरीज वो हमेशा फिक्स्ड होती है, कुछ नहीं बोलेगा तो भी फिक्स्ड। स्टोर कंज्यूमेबल्स मतलब कितना आप रॉ मटेरियल स्टोर करके रखते हो वेयर गोडाउन में, स्टोर कंज्यूमेबल्स बोलते हैं उससे। तो ये तो वेरी करेगा, जितना रॉ मटेरियल ज्यादा उतना वेयर हाउस की कैपेसिटी और एरिया और लैंड और स्पेस ज्यादा, खर्चा ज्यादा। रॉ मटेरियल का क्वांटिटी कम तो स्पेस भी कम, रेंट भी कम, वेयर हाउस का स्पेस भी कम, खर्चा भी कम। तो बिकॉज इट इज वेरिंग एंड देयरफॉर द एक्सपेंसेस विल आल्सो बी वेरिएबल, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं, ये कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं जिनको वेरिएबल और फिक्स्ड में डिवाइड करना है। तो टेल मी, वेरिएबल में क्या क्या जाएगा? सबसे पहला वेरिएबल क्या है बताइए, अभी हमने डिस्कस किया। Store consumable. नहीं, आप सीक्वेंस में जाओ ना बच्चा। पहला डेप्रिसिएशन है, फिर इनडायरेक्ट लेबर। Fixed. Depreciation fixed. हाँ, इनडायरेक्ट लेबर फिक्स्ड, इंश्योरेंस फिक्स्ड, पावर 80%। 80% तो variable सबसे and पहले आप यहाँ पे लिखोगे पावर और ब्रैकेट में लिखोगे 80% वेरिएबल। अभी आपको ना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है पावर का 40,000। तो 40,000 का 80% निकालिए। 32,000. तो यहाँ पे आप लिखोगे अमाउंट में 32,000, बिकॉज अमाउंट दिया हुआ है ना। अच्छा, इसका पर यूनिट कैसे निकालेंगे, एक मिनट रुको। 40 टन दिए हुए ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको 80, मैंने सॉरी इनकम्प्लीट लिखा है फॉर्मेट में। जहाँ पे आप लिख रहे हो ना आई एम सो सॉरी, 80% कैपेसिटी जहाँ लिखा है ना, उसके ब्रैकेट में लिखना है आपको 40 टन्स। और जहां आपने लिखा है 70%, 35 tons. हाँ वेरी गुड, 70 कैपेसिटी पे 35, ये ऑलरेडी 35 दिया था, इनफैक्ट हमने 70% को वर्किंग नोट में निकाला था। तो ये हुआ आपका सॉल्व। इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा। चलो अभी इसका पर यूनिट कैसे निकालेंगे, 32,000 इज माई अमाउंट, सो व्हाट यू विल डिवाइड दिस अमाउंट विथ टू गेट पर यूनिट। ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी चीज का पर यूनिट या 40. सीपीयू निकालना हो, यस वेरी गुड, तो अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो अमाउंट कितना है 32,000, उसके उसके पीछे कितने टन्स आपने यूज किए थे, 40 टन्स, मतलब 1 टन इज इक्वल टू 800. हाँ 800। तो हाउ मच इट विल बी फॉर 32,000, तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। तो किसी भी एक का निकालने के लिए डिवाइड करते हो ना आप, 32,000 डिवाइड बाय 40, तो पर यूनिट आपको 800 मिलेगा। Is that clear now? Yes, ma'am. Similarly, you have to do it with all the expenses. अभी आ जाओ, पावर हो गया, अभी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पे आ जाओ, या पावर का फिक्स्ड भी कर लेते हैं अगर आप बोलो तो। यहाँ पे आपने लिख दिया फिक्स्ड, या चाहिए तो पहले वेरिएबल खत्म करो। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है 50% फिक्स्ड, तो 40,000 का 50% इज हाउ मच, 20,000. 20,000. तो यहाँ पे आपने लिख दिया रिपेयर्स, मैं सिर्फ रिपेयर्स लिख रही हूँ, आप पूरा लिख दीजिएगा। दिस इज 20,000 डिवाइडेड बाय 40 टन्स, तो आपको पर यूनिट भी मिल जाएगा। बताइए पर यूनिट कितना है? 500. आर यू श्योर? 500. Yes, ma'am. आप किसको किससे डिवाइड कर रहे हो, 20,000 को डिवाइड बाय 20,000 divided by 40. वेरी गुड। चलो रिपेयर्स के बाद है सैलरीज एंड स्टोर कंज्यूमेबल्स, इन दोनों में से कौन सा वेरिएबल है? Stores consumable. स्टोर्स कंज्यूमेबल्स, इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है 8,000, विच इज कंप्लीटली वेरिएबल। तो 8,000 डिवाइड बाय 40 टन्स, 200. ओके। अब आ जाओ नीचे फिक्स्ड में,
यहाँ पे आप लिखोगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप ए ब्लॉक में डालोगे, ए ब्लॉक में डाल देंगे, ठीक है। अब मैं इसको बोल्ड में हाईलाइट कर रही हूँ, आप ब्लॉक बनाएंगे। ब्लॉक मतलब एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे। बोलो इसका आंसर कितना आ रहा है? 60,000 अमाउंट। और डिवाइड बाय 40 टन्स करोगे तो 1500। 1500। अब आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, तो फिक्स्ड कॉस्ट हेडिंग लिखकर आप उसको नीचे नेक्स्ट लाइन पे आ जाओगे और जितनी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो सीक्वेंस में लाइन में लिखते जाएंगे। बताइए सबसे पहला फिक्स्ड कॉस्ट डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन इसका अमाउंट 22,000। 22,000 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 40 550। 550। वेरी गुड। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन के बाद है आपका इनडायरेक्ट लेबर 24,000। सो यू विल indirect labor, the amount is 20, I forgot, 24,000। divided by 40 tons. 600। Very good, 600. Next, after indirect labor, you have Insurance। 6,000. Insurance, again in amount column 6,000. Divided by 40, 150। 150. Next, power. So power was 80% 20. variable. Yes, 20% fixed। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखना है 20% फिक्स्ड। सो 40,000 का 20% इज हाउ मच? 8,000। डिवाइडेड बाय 40, 200। पावर के बाद क्या है? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस विच इज 50% फिक्स्ड, तो 50% वेरिएबल। 20,000। 50% आप ब्रैकेट में लिखोगे फिक्स्ड। अमाउंट था 40,000, उसका फिक्स्ड होगा 20,000। डिवाइडेड बाय 40 टाइम्स करो 500। नेक्स्ट, रिपेयर्स के बाद क्या है? Salaries। कुछ नहीं बोला, मतलब फिक्स्ड होते हैं। 20,000 completely fixed divided by 40 40। tons. 500। चलो मेरे हिसाब से सारे फिक्स्ड और सारे वेरिएबल खत्म हुए, कुछ Yes छूटा क्या? मैम। No मैम। तो यहाँ पे आप लिखोगे टोटल, एक लाइन छोड़ के टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसको डालेंगे ब्लॉक 3 में। मैं तो बोल्ड में हाईलाइट कर रही हूँ, आप ब्लॉक बनाएंगे, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे। टोटल अमाउंट बताइए 22,000 प्लस 24 प्लस 6 78,004। क्या बोल रहे हो? मुझे तो 1 लाख दिखा रहे हैं। 1 लाख। हाँ यहाँ पे देखो 1 लाख दिखा रहा है, स्क्रीन पे देखो नीचे सम में। क्या बोल रहे हो अमित? हाँ, कैलसी पे प्लस करने नहीं आ रहा तुम लोग को, एडिशन। चलो जल्दी करेक्ट आंसर बताओ। 1 लाख। अमित 1 लाख ही है मैम। हाँ एक सेकेंड मैम मैं हाँ हाँ हाँ, तभी मैं बोलती हूँ कैलसी यूज करो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाओ। नहीं सुनते हो तुम लोग। पर यूनिट 2,500। पर यूनिट आएगा 2,500 which is calculated by dividing 1 lakh with 40 tons. Yes मैम। ठीक है, अभी आपको निकालना है टीसी। टीसी मतलब टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? वहां ब्रैकेट में लिख रही A हूँ plus B। A plus B मतलब 1 lakh plus 60,000, आंसर इज 1,60,000। 4,000 per unit। 4,000 पर यूनिट आएगा डिवाइडेड बाय 40 टन्स किया तो। अच्छा आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट या सेल्स की कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है? नो मैम। मतलब कोई हिंट दिया हुआ है? प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स, 80% ऑन कॉस्ट, ऐसा कुछ बोला है? नो। कुछ नहीं बोला है, तो मतलब प्रॉफिट और सेल्स करेंगे ही नहीं, मतलब यहाँ पे हमारा खत्म सम।
ठीक है, अभी आ जाओ 70% कैपेसिटी पे 35 टन जब प्रोड्यूस कर रहे हो। अब आप बोलोगे इसमें तो इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई है, 40 टन की इंफॉर्मेशन है ये तो हम 35 टन का कैसे निकालें? देखो बहुत सिंपल है, आपको ना फ्लेक्सिबल बजट में एक चीज याद रखनी है, जब भी हम कोई वेरिएबल जब भी हम कोई एक्सपेंसेस को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे या सेम रखेंगे, तो अगर वेरिएबल कॉस्ट होगा ना तो उसको ट्रीट, मैं वर्ड ट्रीट यूज कर रही हूँ, ट्रीट कैन बी एनीथिंग, इंक्रीज, डिक्रीज और कीपिंग सेम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. आई एम यूजिंग वर्ड ट्रीट, मतलब अगर आप वेरिएबल एक्सपेंसेस को ट्रीट कर रहे हैं, चाहे वो इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो या सेम रखना हो, उसको आप किसके अकॉर्डिंग करेंगे? पर यूनिट के हिसाब से। अगर वेरिएबल खर्चे होंगे तो पर यूनिट, और अगर फिक्स्ड के खर्चे होंगे तो अमाउंट वाइज। फॉर एग्जाम्पल I'm telling you, अभी इस क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है क्या, जब हम 40 टन बना रहे हैं तब डेप्रिसिएशन 22,000 है, पर जब हम 35 टन बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन 5% से बढ़ जाएगा, No, ma'am. या इंश्योरेंस 2% से कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी बोल रहा है क्या ये क्वेश्चन में? No. नहीं, कुछ नहीं बोला, मतलब सेम रखने का। देखो खर्चे तो होंगे ना, कंपनी है तो खर्चा तो होगा, बराबर कंपनी बंद नहीं हो रही है। व्हेन द बिजनेस इज रनिंग देयर विल बी एक्सपेंसेस, सर्टेनली देयर विल बी एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। कुछ इनकम होगी, कुछ एक्सपेंस होगा, कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, पर एक्सपेंसेस तो होंगे ना। तो Yes, ma'am. कुछ नहीं बोला है इसका मतलब जीरो नहीं हो सकता है, कुछ नहीं Same. बोला है का मतलब है सेम। अभी ध्यान से देखो, उस मैंने अभी अभी रूल क्या सिखाया, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। हाँ, ये रूल ऑफ फ्लेक्सिबल बजट होता है, ये मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ, पेपर में मत लिख के आना, पता चला पेपर में लिख के आ गए। तो दिस इज रूल ऑफ फ्लेक्सिबल बजटिंग, ओके। जब वेरिएबल एक्सपेंसेस को ट्रीट करना है तो पर यूनिट वाइज ट्रीट करना है, और फिक्स्ड एक्सपेंसेस को ट्रीट करना है तो अमाउंट वाइज ट्रीट करना है। अभी देखो एग्जाम्पल, अभी उसने वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए कुछ नहीं बोला है, तो कीप इट सेम, 500 एंड 200। किसको मैंने सेम रखा? पर यूनिट को। पर यूनिट। Per अभी फिक्स्ड, unit. हाँ रुको, हाँ अभी फिक्स्ड में आ जाओ, नीचे डेप्रिसिएशन से लेकर अभी कुछ नहीं बोल रहा है, ना ही बोलता है इंक्रीज करो, ना ही बोलता है Amount. डिक्रीज करो। तो जितने भी अमाउंट है ना सबको सेम डाल दो, 22,000, 24,000, समझ में आ रहा है? 6,000, Yes, ma'am. 8,000, next is 20,000 and again 20,000। देखा? तो अभी अगर मुझे पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट मैंने सेम रखा, तो अब अमाउंट किधर से निकालूं? Per unit multiply by a number of tons. मतलब quantity. वेरी गुड। जब आप सीपीयू निकालते हो तो डिवाइड करते हो, अब पर यूनिट निकालना है, पर यूनिट दिया हुआ है और अमाउंट निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे? लॉजिक से समझिए, 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 800 रुपीज, तो 35 टन इज इक्वल टू हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लाई। 28,000. So 800 into 35 is how much? 28,000. 28,000। अभी देखो अमाउंट वेरी हो गया, अमाउंट पहले कितना था? 32,000। जब भी आप 40 32,000. टन बना रहे थे तभी पावर का खर्चा था 32,000। अब आप कम, अभी सीजन टाइम नहीं है तो आप कम बना रहे हो, प्रोडक्शन कम कर रहे हो तो खर्चा भी कम, 28,000। जब भी दिवाली का सीजन आ गया, क्रैकर्स ज्यादा बनाने लग गया तो पावर का खर्चा भी ज्यादा। अब दिवाली चली गई, आपने क्रैकर्स बनाना कम कर दिया, 35 टन बना दिया तो आपका खर्चा भी कम, 28,000। सिमिलरली आप रिपेयर्स और स्टोर कंज्यूमेबल भी करोगे, 500 into 35, 17,500. 17,500, और देखो सबका खर्चा कम होता जाएगा, 200 into 35, 7,000. 7,000। ठीक है, टोटल वेरिएबल बताइए अभी, 28,000, 17,500, 52,500. 52,500, वेरी गुड। उसका पर यूनिट तो बताओ, 52,500 डिवाइडेड बाय 1,500. 1,500. चलो
अभी इसका पर यूनिट निकालना है फिक्स्ड का, क्योंकि अमाउंट तो हमने सेम रखा है. सो 22,000 डिवाइड बाय 35. 629. तो देखो अभी इसका पर यूनिट, अभी क्या बोल रहे हो? 629. 629. ओके. नेक्स्ट, अभी देखो इसका पर यूनिट बढ़ गया. फिक्स्ड एक्सपेंसेस का पर यूनिट बढ़ गया, बढ़ता जाएगा अभी. देखो मैम एक्चुअली वो 628.5 है, सो आई राउंड चलेगा ऑफ एंड आई एम टेलिंग. चलेगा. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. बोलते जाइए अभी. या सेम रखो, पर यूनिट में सेम ही रखो. 628.5. नेक्स्ट बोलिए. 24,000 डिवाइडेड बाय 35. 684, 85. 685.7. Okay, next. 6,000 divided by 35. 171.4. 40. Okay, next. Come on, quickly. 228.5. Next. 571.4. Okay, good, good. Next. 571.4. अच्छा, सेम. हाँ, बराबर सेम आएगा बिकॉज अमाउंट सेम है. मुझे टोटल बताइए. टोटल आई थिंक 1 लाख ही होगा. 1 lakh. Yes. अच्छा, डिवाइड बाय 35 यूनिट्स कीजिए. 2,857.1. 2000 क्या? 857.1. ठीक है क्या? 14 अभी है मैम. 0.1410 नहीं. ठीक, अभी सही है. Yes मैम. अब A plus B 52,500 plus 1 lakh. तो कितना होगा? 1,52,500. divided by 35 terms. $4,357.14. हो गया, फिनिश. देखो कितना सिंपल है. Is it clear, students? Yes ma'am. Okay. Just give me 1 minute. Let me save it. This is which chapter? Budgeting, no? Yes ma'am. Okay. Solve it now. और फिर 12 o'clock हम वापस मिलेंगे. I have to go for one meeting. उसके बाद 12 o'clock resume करते हैं. चलेगा? Yes ma'am. सबको वापस आने का 12 बजे. ठीक है? ठीक है. हाँ, आप स्नैपशॉट निकाल दोगे क्या? मैं अपना लैपटॉप शट डाउन Yes कर ma'am. देती हूँ. Done. ठीक. ओके, थैंक यू. बाय एवरीबॉडी. टेक केयर. 12 बजे फिर से मिलेंगे. ठीक है? Okay ma'am. Bye. Thank you. हम्म.